Hey kids, I'm Nilay. Welcome to Talk is Overrated. It's nothing serious, just me and a couple of friends discussing socio-political contemporary issues, giving out our opinions while managing to offend the respective communities we are talking about. I strongly suggest you to tune out if you can't take offensive humor or straight up facts. Last but not the least, we do not promote licking doorknobs in outer space. On today's episode of Talk is Overrated, which is the second episode, we have yet again with us Vedant Kotavalle. Vedant, say hi to everyone. Hello, hello, hello. And by Uh, everyone, I mean 46 people who are going to watch this. I have And run out of cool lines to say after hello, hello, hello. Hope that changes by the next episode. today's episode is going to be called Morphine and Unicorns, which is very abstract. A few days ago, I put Just out like our audience. a few days ago, I put out a story on Instagram on my meme account, asking people what would they like us to talk about. And I must say that the responses were quite varying. But today we are going to pick out some random topics. Few of them which are being suggested by them, few of them which are contemporary issues. So let's get into it. So वेदांत एक बात बता तूने obviously you must have heard about the suicide case of Sushant Singh Rajput. Yes. So मतलब क्या what is your what is your take on this, on the whole situation? Overall, if anyone follows me, but if you see my stories, I have a progression. I started with very insensitive. I just reposted my story from Irfan Khan's death. saying ये मेरे को ये जोक रिसाइकल करने का कोई बताओ कैसे. Asshole followers have also messaged me with actual suggestions. ये ले ऐसा कर. So I did that, but then I was very disturbed when people started sending out images of his dead body. Yeah, correct. फिर मैं बहुत डिस्टर्ब होके मैं ऐसा all caps फिर please don't send images of a dead body ever, any dead body, please. उसमें और हरामी लोग आके जानबूझ के उसके रिप्लाई में उसका फोटो डाल रहे कि हाँ ये सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, बता. To this story, I think there are three perspectives. ठीक है, पहला तो ये है कि this ridiculous trend dear eagles have started on social media by putting out a story with a 24-hour expiration date that reach out to me anytime you want. I'm always available. I'd rather see you talk to me and alive than be at your funeral. And the second aspect to this situation is that Bollywood and nepotism, people are saying that he was not invited to parties, and because the rich kids apparently, or the kids with good contacts, are taking all the contracts and the movies, he was apparently not given many chances, and many of his contracts were snatched from by other directors. And the third is which I think is the one we should be talking about the most, is that the jokes and memes which you just referred to, the jokes and memes on his death, like, is there a line at which people can laugh at something? I mean, अपन खुद भी जोक्स मार रहे थे. अपन बहुत जोक्स मार रहे थे, थोड़ा ज्यादा हो गया. मैं खुद बहुत ऐसा ये सुसाइड जोक पे मस्त नया स्पिन डाल के बोल रहा था. But you have to admit suicide jokes are fun. Especially when you are considering suicide. But in any case, जब मैं उसका डेड बॉडी देखा तब मैं भी जीसी पे डाला मैं कि थोड़ा ज्यादा डार्क हो गए, ये नहीं करना चाहिए था. I think that is also the thing with I think that's a problem with meme culture as it stands now, because like my mother tested positive for coronavirus. So on that day the most recurring thing in my head is इतना सारा जोक्स नहीं मारना चाहिए था कोरोना पे, ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया. एंड लाइक वो मैं ऐसा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्विटर खोला तो मेरे को पिछले दिन के ही कुछ मैं कोरोना पे जोक मारा था, उसका रिस्पॉन्सेस दिख रहे मेरे को. वो तो है कि because a memer wants to grow his audience, he wants to do something different.
Correct. And because all of the normal things are already taken up, he will make memes about death, suicide. He will make memes about anything. And I think वो अपन क्लाउड चेजर्स को बोलते हैं ना, जो तूने भी मेंशन किया कि ये लोग मेरे से बात करो, ये क्लाउड चेजर्स है. बट जो मीमर एकदम सारे लाइंस क्रॉस करके कुछ भी मीम बना रहा है, दैट इज आल्सो क्लाउड चेजिंग. But it is just funny, like, so you don't notice it. There is this, like, really, it has become really mainstream now. But there is this great argument regarding jokes that people love to say this, that humor is subjective. What's funny to me might not be funny to you, and vice versa. So अपन ऐसा line, मतलब I personally, I have said this in the beginning that I find suicide jokes funny. The mother of some guy who killed himself in a fucking hostel in Kota might not find my jokes funny. So how do we know where and I don't think I'm saying that there is a line, that there is a clear distinction कि यहाँ तक jokes मार सकता है, इसके आगे नहीं. I'm saying that everyone has a different level of sensitivity to something. The people जो मैं बोल रहा था कि please dead body का story images must circulate karo, the people who sent me the dead body in response, these I'm not saying they're bad people. I'm just saying that it's not something I'm comfortable with. Okay. Look, if I'm in the public domain, you are free to send me anything. Correct. But I just don't find it funny, or I just find it severely insensitive. So I think the natural... But no. Okay, fine, go on. But I won't stop them from it. I won't say कि तू चुतिया तू ये किया तो. I'm just like, but I don't like it. Please don't do it. If you do it, it's okay. I think that a natural conclusion we can draw from this is, अगर तुझे कोई चीज से बुरा या offend होता है तू, तो the max you can do is कि चल unfollow कर दे, block कर दे, report कर दे and move on. हाँ, तो मैं तो वो भी नहीं किया. मैं बोला तुम लोग को जो करना है करो, मेरे को जो बोलने का है वो मैं बोल दिया. हाँ, बस now you are free to do whatever you want to do. Like, all I'm saying is, like, it's not necessary that you make such a big deal out of this. मतलब ठीक है, report करो and move on. मतलब report करो. If there is a real problem, then the report should be successful. And so moving on to the other side, that many people in pursuit of clout, they are putting up stories like people who are mentally not okay should reach out to me and shit like that. So one thing I'd like to quickly voice my opinion in this is that many times the person who puts out such stories, or many even your close friends, basically these guys are not certified psychiatrists. वो तुम्हें कुछ बोलेगे, तुम उसका कुछ अलग interpretation निकालोगे. ऐसा बहुत बार हो सकता है. And even though I have failed, but I have studied psychology for 2 years, and one thing I have learned is that you have to, like, if you think that you have such problems, first thing you do is consult a psychiatrist. दोस्तों से बात करना, it takes your pressure off माना, but you never know what kind of adverse effect it might have on the person who has actual mental issues. नहीं, I think the metaphor to use here is that अगर तेरे घर में आग लगी, तू भी उसको पानी फेंक के जलाना कम कर सकता है ना. You technically can stop the fire. Correct. But that does not mean कि तू fire department को उड़ा देगा. चाहिए ही नहीं मेरे को, मैं खुद ही सब कर सकता है. I do believe that conversations with good friends who happen to be good people can be therapeutic. Yeah, absolutely. They can make you feel better. They can be guiding and stuff. Yes. But I don't think it is a replacement. It is an add-on to actual psychiatry. If you have a problem, तो दोस्त से भी बात कर, but फिर बाद में तो psychiatrist के पास भी जा. बड़े ही पोएटिक ख्यालात में जाते हुए वेदांत कोटा पल्ले आज हमारे साथ. अरे मस्त अच्छा खाना खाए ना आज, तो आता है. You seem to have given this a lot of thought. No, even before this, there has been this conflict of is therapy something I need, or is that something? This is why I thought about this even before all of this happened, and now is the time, I think, to release these thoughts into the public. And quickly, the third perspective will address it.
is that the deal which is going on, the outrage against nepotism, which has been existed but has been muffled. But now one divergent guy who decided to take his life, and because of that, it has set many things in motion. People are now really angry. Some actors, some small-time actors in Mumbai are scared because of this shit. And apparently there is a lot of public outrage against huge Bollywood celebrities and their kids, like people like say Varun आलिया भट्ट को अनफॉलो कर रहे हैं, करण जौहर के खिलाफ मीम्स बन रहे हैं, मीम्स मुझे तो लगता है यार अपने 70% ऑफ कन्वर्सेशन मीम्स ही होता है. हाँ, तो 70% ऑफ न्यूज भी लोग को मीम्स से ही मिल रहा है, तो गलत नहीं हुआ. बट my take on this whole topic is that first of all you shouldn't be, it's my opinion entirely, but you shouldn't be offended or in any ways against the concept of nepotism. क्योंकि देखो basically कैसा है कि just imagine yourself in their place कि तुम बहुत 20-30 साल बहुत इंडस्ट्री में गान गए, you have done shit, you have literally done shit things to reach where you are, and you don't want your kid to go through the same things. So using your resources, using your contacts, you obviously want to give your kid a head start. I personally don't feel like there's anything wrong with that. But I think it's a bad thing which has a logical justification. I think sociology, maybe there is this term called why privilege exists. The sociological theory for why privilege exists is because people who are privileged at the start of civilization will always try to make sure that their children remain in that same strata of society. So I think it's a bad thing which is justified. Yeah. So I do agree with your point that people shouldn't be angry. The anger against nepotism is not completely rational, but it's definitely true that because Indians love outsiders, underdogs. Yes. Not just Indians, everybody loves an underdog. Everybody loves underdogs, but because the top पे है, he is always, अभी मेरे को मुकेश अंबानी बनना है, सबको ही मुकेश अंबानी बनना है ना, who doesn't want $44 billion? So बिकॉज तेरे को मुकेश अंबानी बनना है बट तू बन नहीं सकता, इसलिए तू जेलस है, इसलिए तू मुकेश अंबानी पे जोक्स मारता है. बराबर. तो एग्जाम टॉपर पे भी जोक लोग इसलिए मारते हैं. सबको एग्जाम टॉपर बनना है बट बन नहीं बन सकते. व्हाट इज द क्विकेस्ट वे टू फिल दैट void is by making fun of them. हाँ, तो अभी इसलिए पीपल हैव ऑल्सो जस्ट मेकिंग दिस क्लियर, जब से नेपोटिज्म वाला चालू है, पीपल थिंक दैट सुशांत ने सब बोल के गए कि नेपोटिज्म की वजह से मैं कर रहा. नॉट ट्रू. सुशांत हैज नॉट लेफ्ट एनी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एनी काइंड. ही हैज कमिटेड सुसाइड एंड पोस्ट हिज डेथ पीपल आर मेकिंग दिस आर्गुमेंट दैट नेपोटिज्म हैज समथिंग टू डू विद इट, बट दैट मे और मे नॉट बी ट्रू. वी कांट रियली कमेंट ऑन दैट because there is no way to verify. हाँ, तो basically the deal is that अभी फिलहाल के लिए बहुत outrage है, but as Vedant said earlier, I think the main conclusion is that he did, as far as we know, he didn't leave any kind of note at all. So उसने बस बीच में आई थिंक इंटरव्यू में कुछ स्टेटमेंट दिया था कि मुझे पार्टी में वगैरह नहीं बुलाते ये लोग, या मेरी इज्जत नहीं करते हैं. हाँ, ही इज फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर बेसिकली. इफ आउटसाइडर्स को इंडस्ट्री भाव नहीं देगी तो इंडस्ट्री 2 दिन में कोलैप्स हो जाएगी. और हाँ, व्हिच इज ट्रू. एंड अनन्या पांडे रहेगी इंडस्ट्री में, हाँ, तो कैसा चलेगा. हाँ, और इसके बीच में जो कंगना रनौत ने वीडियो बनाया था उस पे आई डोंट थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट इट. मैं एक्चुअली देखा भी नहीं अब तक. मैं बोला वही सेम आर्गुमेंट्स रहेंगे. हाँ. अरे, एंड द वर्स्ट थिंग आई फेल्ट अबाउट दैट वीडियो वाज समवेयर इन बिटवीन शी यूज्ड द फसाड ऑफ what was his age, 26-27. She used the facade of the death of a pretty young guy to somehow regain sympathy in the industry by saying कि तुम गली बॉय जैसे बकवास मूवी को इतने अवार्ड्स देते हो
और मैं जो मूवीज डायरेक्ट करती हूँ तुम उसको अवार्ड्स नहीं देते हो. दिस इज हर स्टेटमेंट इन दैट वीडियो. After which I tuned out. Small snippet on award वाला. Always there is this outrage कि award इसको नहीं मिला उसको नहीं मिला. The award is a purely commercial thing. Yes. ये like Jungly Pictures सुना रहेगा ना तुम लोग. Jungly Pictures का ही parent company also owns Filmfare. अभी बालाजी गोल्ड फिल्म का parent company also owns also has significant stake in Star. Obviously अगर अवार्ड देने का आएगा तो खुद का मूवी तो देगा ना. तो अवार्ड के लिए आउटरीच करके कुछ मतलब नहीं. अरे सीधा भाई इंडियंस के दिल पे पहुंचने वाली अगर मैं एनालॉजी दूं तो ये आईफा फिल्म फेयर को तुम समझो आईपीएल है और ऑस्कर समझो वर्ल्ड कप है. अभी तुम्हें ज्यादा इम्पोर्टेंस किसका है? तुमको आईपीएल जीतना है कि तुम्हें वर्ल्ड कप जीतना है? और इन दिस केस तुम लोग सिर्फ आईपीएल ही खेल रहे हो. ऑस्कर वर्ल्ड कप में तुमको बांग्लादेश जैसा भाव है. Oh man, that is hilarious. All right, moving on. Enough with this suicide shit यार. ये बहुत काफी जरा डिप्रेसिंग हो रहा है और काफी डिप्रेसिंग और काफी एकदम रियल, अपने लिए ज्यादा ही रियल. हाँ. तो डिप्रेशन को अपनी यूथ हटाने के लिए आजकल गांजा का बहुत प्रयोग कर रही है और हमारे एक ऑडियंस मेंबर ने हमें सजेस्ट किया था कि वीड लीगलाइजेशन के ऊपर बात कीजिए. सो बिफोर वी स्टार्ट वॉइसिंग आवर ओपिनियंस आई विल क्विकली गिव 1 or 2 स्टैटिस्टिक्स क्योंकि फ्लेक्स बनता है. मैं पढ़ के आया हूँ. ये मेरा 4 गूगल सर्च इज इक्वल टू 4 मिनट का कंटेंट. So basically a 2017 a study was conducted in 2017 which actually showed that after the legalization of marijuana and cannabis, which are I think essentially same चीज है दोनों. Cannabis technical name है, marijuana ये street name है. Street name है. हाँ. तो after the legalization of marijuana there was a huge reduction in violent crime in American states that border Mexico. क्योंकि मुझे लगता है बेसिकली मेक्सिको से ही वो एक्सपोर्ट कराते हैं. Another thing is in Colorado after 2014 a state wherein after 2014 cannabis was legalized, violent crimes have decreased drastically and however there was an increase in homelessness. So and another thing was that 15% increase in babies with THC in their blood, which is a substance is cannabis. Another alongside ये एक बेनिफिट हुआ कि उनका कहना है गांजा फूकने के बाद लोग शांत हो जाते हैं. बेसिकली ये 2 स्टडीज का ऐसा कहना है. Clearly these scientists have never smoked. हाँ. और another really interesting article I read regarding to this was that in Journal of Medical Association, this is a renowned medical magazine in US. The average cannabis smoker who smokes weed about 2 to 3 times a month, his lung capacity is more than that of an average American who smokes cigarettes daily. तो उनका कहना है कि इन सम वे तुम्हारे लंग्स को हेल्प करता है. वो तेरा बॉडी तेरे इनटेक को रेगुलेट करने के लिए खुद को ये कर लेता है और बढ़ा लेता है. हाँ. और लास्ट आर्ग्यूमेंट इसका ये है कि लास्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि तुम पेन रिलीफ के लिए काम में आता है. सो इट कैन मेडिसिनल यूज. हाँ. इट कैन हेल्प रिड्यूस पेन फेल्ड बाय कीमोथेरेपी और जो भी बेसिकली बहुत बड़े ऑपरेशंस होते हैं उनके उसके बाद जो तुम्हें जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो पेन बहुत ज्यादा होता है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकता है कैनबिस का यूज. बट हमारी जो गवर्नमेंट है, और अभी की गवर्नमेंट नहीं, एनी गवर्नमेंट सिंस द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी एज अ डेमोक्रेसी, इट हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट लीगलाइजेशन ऑफ कैनबिस बिकॉज मतलब कल्चरल शॉक है ना. मतलब बचपन से हमें यही सिखाया है कि मोर देन कल्चरल शॉक इट इज अपने इधर लोग दारू पीता है इज इक्वल्स टू अल्कोहलिक. हाँ. मतलब वो दिन भर दारू पीता है. हाँ. अपने इधर मतलब ये दारू पीता है मतलब तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है ऐसा बैठा हुआ है बार में
रेड ब्लू लाइट चल रहे हैं, वो दारू पी रहा है बैठ के, तो फिर वो बार फाइट कर रहा है। हाँ, मतलब यही हो रहा है उसकी जिंदगी में, काम करता ही नहीं, और काम करता ही नहीं, बस बार में लड़कियों पे पैसे उड़ाता है, दारू पीता है, उधर बैठा रहता है। अरे तो अपन भी शोज देखते हैं ना, शोज में कितना की मोमेंट रहता है कि बच्चा बाप के साथ बैठ के पहली बार किया है। वो कभी इंडिया में हो सकता है? नहीं, वो तो बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा कल्चर हो जाएगा। कैनबिस क्या स्टडीज से मेरे को 2 चीज बोलने गए। हाँ, any study is basically you take one event, you take another event and you try to figure out इन दोनों में connection है क्या कुछ। हाँ, तो if suppose in a 3-month period महाराष्ट्र में समझो वीड लीगलाइज कर दिया, हाँ, और उसी 3 मंथ पीरियड में क्राइम एक्टिविटी गिर गया फॉर सम अदर रीजन, देन वो स्टडी अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं तो सोचूंगा कि मैं वीड लीगलाइज किया, क्राइम नीचे गिर गया, इट मीन दोनों लिंक्ड है, which is scientifically valid but not true. So in most studies have this problem कि you link two mutually exclusive events together and draw a conclusion. हाँ, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है। General advice to audiences whenever you see the headline, वो हेडलाइन के एंड में you will find a link to the actual study, go to it and see कि दोनों में सैंपल क्या लिया है, then you can realize कि क्या सही है, क्या स्कैम चल रहा है। और दूसरा है कि ड्रग वायलेंस कम हो जाता है ना ऑटोमेटिकली। इफ यू हैव टू बाय अ ड्रग्स फ्रॉम अ शेडी डीलर डाउन द स्ट्रीट, then obviously there are chances where उसके पास तू उसको वो तेरे से ज्यादा पैसा मांगा तो पैसा नहीं दिया मार देगा। बराबर, गैंग वॉर्स और व्हाटएवर। हाँ, गैंग वॉर्स, टर्क वॉर्स, सब एलिमेंट्स उसमें आ जाता है ना ड्रग ट्रेड में। तो लीगलाइज ड्रग ट्रेड, अभी तुम कैलिफोर्निया मैरिजुआना स्टोर जैसा कुछ गूगल करके देखो तुम लोग यूट्यूब पे, दे आर दीज नाइस लिटिल एसीड सुपरमार्केट जिधर ऐसा गमी बेयर में गांजा मिल रहा है, कैंडी में मिल रहा है, चॉकलेट के अंदर डाल के मिल रहा है, सब मिल रहा है। नाइस लिटिल ऐसा बहुत क्यूट नाना नानी स्टोर वाइब है, बस अंदर गांजा मिल रहा है। तो वो लीगलाइज करने के बाद कैलिफोर्निया में कितना हेल्दी एटीट्यूड आ गया है उसके लिए, मेडिसिनल यूजेस के स्टडी बढ़ते जा रहे हैं, और इतना मैसिव जंप इन रेवेन्यू ऑफ द चार्ट भाई। और three things to legalizing anything and 3 things to not making anything legal, जो उसमें तीनों जनरली कोई भी सब्सटेंस के लिए मैं बोलेगा कि if you legalize something उसका क्वालिटी बढ़ता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स वांट टू गेट इन एंड मेक मनी। अगर वो लीगल नहीं रहता है तो फिर मोस्ट प्राइवेट कंपनी शाय अवे, कोई शेडी सा बंदा बेचता रहेगा, दैट कॉजेज अननेसेसरी डेथ, कोई एसोसिएट नहीं करेगी कंपनी, अननेसेसरी डेथ होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, और जस्ट बैड क्वालिटी ऑफ लेबर लॉज पे नहीं चलेंगे वगैरह, ऐसा सब होगा। सो इट कैन बी ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज वेल, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, हर चीज में बहुत वर्क हो जाता है इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर तू लीगलाइज नहीं करता है कुछ चीज को। और 3 चीज बोला था मैं। दूसरा इज कि इफ यू लीगलाइज समथिंग तेरे को उससे पैसा मिलता है, बिकॉज वो बिकेगा, टैक्स रहेगा। गुजरात में 25,000 करोड़ का दारू बिकता है, बट बिकॉज, और 25,000 करोड़ इज अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट, उससे बहुत ज्यादा बिकता है। तो वो 25,000 करोड़ पे टैक्स ही लगा सकता है, क्योंकि पता है अभी मैं तो 16 साल का बच्चा हूँ, मेरे को पता है कि इतना बिक रहा है, गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पता है, बट गवर्नमेंट उसको टैक्स नहीं कर सकता क्योंकि खुद ही वो लोग उसको इलीगल बना दिया। तो बिक रहा है कहीं पे बिना टैक्स के, लोग पिए जा रहे हैं, रईस मूवी बनते जा रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम। तीसरा तो लेबर लॉस वाला बोला कि सेलिंग बाइंग अगर लीगल नहीं है तो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स खराब रहता है, बराबर। तो और सेलिंग के टाइम फिर अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आते हैं, बराबर। उसको लीगल करने के, उसको लीगल ना करने के खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स होता, उस पर भी अपन बात कर सकते हैं। लीगल, एक लीगल ना करने के खिलाफ, एक अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग अ कल्चरल शॉक टू पीपल ऑफ अवर कंट्री, अनदर आर्ग्यूमेंट इज कि ओवरडोज का है कि मतलब ओडी बहुत बच्चा लोग ओडी कर सकता है उसके वजह से,
एंड क्या प्रोसीजर से बनेगा वो फिर पब्लिक नॉलेज बन गया, तो उससे मतलब वेरियस आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग बेसिकली वो बोल रहे कि ऑल्सो marijuana इज नॉट हार्ड ड्रग टू whoever is listening. इट इज वो बहुत माइनर साइकेडेलिक सब्सटेंस है. उस पे ओडी करने के लिए तेरे को बहुत 3 साल कंटिन्यूसली तो फूक के ही बैठा रहा तो शायद कुछ होगा, और 3 साल भी पूरा टाइम फूक के रहा तो शायद ही कुछ होगा. जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. बट माय पॉइंट इज कि वो हार्ड ड्रग नहीं है. तो वो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं कि बच्चों के हाथ में लग गया तो बच्चे कुछ भी करेंगे उसके साथ, फिर पूरा देश खराब हो जाएगा. मैं बोलता बच्चों को कंट्रोल में रखो ना. फिर ये क्या लॉजिक है? ऐसे तो फिर बच्चों को दिन भर घर में ही रखना चाहिए. ऐसे तो एक काम करते हैं ना अपन, फोन मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर देते हैं, बच्चों के हाथ में फोन सब बंद कर. कैसा होगा? इंटरनेट ही बंद कर देते हैं. लेट्स बिकम भाई चाइना का नाम ना ही लिया जाए इन टाइम्स में तो बहुत अच्छा है. हाँ, ओ तेरा कोरोना वायरस का फोबिया वापस आ जाएगा. नहीं, कोरोना वायरस का नहीं रहा अभी तो मार्टिर वगैरह हो गया ना, तो लोग बन गया. वो तो ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट. पिछला तो पॉडकास्ट उसी के वजह से स्क्रैप करना पड़ा अपन को. वी डू नॉट एंडोर्स कि ये सब माइनर लोग जाके, अब मैं खुद भी माइनर है, तू शायद 18 है. मैं 18 हो गया अभी. तो वी डू नॉट एंडोर्स. मेरा ओपिनियन है, मैं एंडोर्स की बात नहीं है यार. मेरा कहना है 18 के ऊपर का बंदा है, इट्स हिज लाइफ, यू हैव नो मतलब एज लॉन्ग एज इट उसको जो करना करने दो उसको. अगर वो जिंदगी अपने कमरे में बैठ के भंड बितानी है तो इट्स हिज चॉइस. एसेंशियली एवरीथिंग कम्स डाउन टू नेहा धूपिया एज लॉन्ग एज इट्स डन लीगली. तो that is the thing that is the liberal utopia na. Everyone should be allowed to do whatever they want to, as long as it does not hurt other people's ability to do whatever they want to. But यार इसमें मुझे मतलब I think we are losing a bit of pragmatic thinking here, क्योंकि मतलब let's assume of course it is a concern कि if you legalize a drug then the अदर साइड इज की अपन को घंटा फर्क पड़ता है. मतलब ये सब तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है. अपने को क्या कहना है? मेडिकल बेनिफिट के लिए लाओ. आगे तुम क्या मेडिकल बेनिफिट के लिए लाओ. अभी मतलब 18 साल के लॉन्डो के ऊपर आ गया है कि भैया गांजा लाओ करके, तो मतलब सोच ही लो तुम. और ऐसा भी नहीं कुछ भी इरैशनल बोल रहे हैं. और बेसिक पॉइंट, बहुत बेसिक पॉइंट, गवर्नमेंट में जो लोग है वो लोग भी कॉलेज गए. वो लोग भी वैसे मतलब गवर्नमेंट वाले तो नहीं बट ब्यूरोक्रेट गए होंगे. गवर्नमेंट वाले कॉलेज गए तो अजीब हो जाएगा. तो वो भी कॉलेज है, उनको पता है कि देयर आर इलीगल ट्रेड चल रहा है. ये सबको पता है. वो तो चल रहा है. इफ यू गेट इनटू इट एंड रेगुलेट समथिंग देन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स बेटर. हाँ, एक तो पैसा आएगा, दूसरा है कि जो अनसेफ उसके. आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस. लेट्स जस्ट फकिंग. तो तेरे को एग्जांपल चाहिए, उसमें कैसा एक्सप्लॉइट किया. ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा एक डिपार्टमेंट था डेडिकेटेड टू सेलिंग ओपियम टू द साउथ ईस्ट एशियन रीजन. हाँ, वो तो उनके यूथ करप्ट वाला कुछ उनका था ना सीन. हाँ, यूथ करप्ट वाला नहीं था रे. they just knew it was addictive and it would make them a lot of money. वियतनाम में था शायद. वियतनाम में भी वो जॉर्ज ऑरवेल सुना रहेगा ना तूने भी, बहुत लोगों ने सुना रहेगा. जॉर्ज ऑरवेल का बाप, जॉर्ज ऑरवेल एक्चुअली बिहार में पैदा हुआ था, मोतिहारी बिहार में. उसका बाप वाज हेड ऑफ द ओपियम डिपार्टमेंट है. उसका जॉब वाज टू सेल ओपियम ऑल ओवर इंडिया. जॉर्ज ऑरवेल का बाप. वाओ, काफी वियर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, अपन कैनिबस पे भी बात कर लिया. ठीक है. All right, moving on from cannabis से सबसे बड़े लोग पाए जाते हैं. सॉरी, सेगमेंटेड डालने वाला है, पूरा डालने वाला है? पूरा. ठीक है, फिर मेरे को नहीं बोलना चाहिए था. सॉरी. अरे चलता है, बस हल्के इसमें हल्के कट करने पड़ेंगे. स्मूथ जा रहा है उसको ट्रांजिशन में. हाँ, तो भंड लोगों की बात करने से एक और टॉपिक आता है कि देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन अमेरिका
Not this is not the Black Lives Matter scene. What I'm talking about is there is a large population in America which is apparently opposed to wearing masks for masks which protect the coronavirus from entering their system. And and the president of the country, Donald Trump, he says, and I quote, "Anyhow, I'm feeling good. Wearing a mask isn't for me. I don't wear a mask. I don't want to wear a mask sitting behind my beautiful desk in the Oval Office while I'm greeting presidents and kings and queens. I just hope that the coronavirus phase passes off very soon." This is the quote given by... I think डोनाल्ड ट्रम्प का प्रॉब्लम है कि उसको उसने आउटफिट 4 साल से चेंज नहीं किया ना, मास्क पहनना पड़ गया तो उसका लुक खराब हो जाएगा ब्रो. 4 साल से कुछ चेंज नहीं किया उसने. डोनाल्ड ट्रम्प खराब बाल शुड रिमेन खराब बाल. डोनाल्ड ट्रम्प की बातें सुन के फिर एक और आर्ग्यूमेंट अपने प्रीवियस टॉपिक पे हो जाता है कि वाइल वीड शुड नॉट बी लीगलाइज, बट ट्रम्प फूक के बैठा प्रॉब्ली. और नहीं फूक के बैठा तो ग्रेटर कंसर्न है कि उसका नॉर्मल दिमाग ऐसा है. बट हाँ, अरे तो मतलब द प्रोटेस्ट आर वो सबसे कॉमन बोर्ड साइन क्या है पता तेरे को? ये प्रोटेस्ट पे जो मास्कलेस प्रोटेस्ट है वगैरह, हाँ. सबसे कॉमन साइन इज आई वांट अ हेयर कट. व्हाट? ये CNN का एक जो पोलस्टर था, वो पोलस्टर सारे आई थिंक 20 मेजर सिटीज के प्रोटेस्ट में गया. और उसने लेजिट काउंट किया सबसे ज्यादा चैंट्स और ये सब कहते हैं, पूरा डेटा कंपाइल करके द मोस्ट कॉमन चैंट इन दिस प्रोटेस्ट इज आई वांट अ हेयर कट. आई थिंक आई आल्सो वांट अ हेयर कट, बट मैं रास्ते पे नाच नहीं रहा इसके लिए. कॉमन भाई, मतलब अमेरिकन्स लैक अ बिट ऑफ साइंटिफिक एज एंड कॉमन सेंस. मतलब उनका मुझे लगता है 30% अमेरिकन बहुत ही स्मार्ट, वर्ल्ड के लीडिंग स्मार्टेस्ट लोग, और 70% लोग एक्सट्रीमली डम. वो क्या अभी अमेरिकन रिवर्स में अपने बारे में सोचते हैं. अमेरिकन थिंक इंडियंस आर वेरी स्मार्ट बिकॉज दे स्मार्ट इंडियंस मेक इट टू अमेरिका. दे डोंट नो इंडिया में जस्टिस फॉर कैरी चल रहा है 4 दिन. उनको बताएंगे, वो बोलेगा अरे निकलो इनके वीजा, डोनाल्ड ट्रम्प की पहले मैं कैंसिल करूंगा. एंड हाँ, apparently, and the justifications people are giving for not wanting to wear masks is even more hilarious. They say that it violates their right to choose what they want to wear and what they don't want to wear. Apparently they don't want to wear a mask because it will compromise their immune system. उनको क्या लग रहा है, मतलब ऐसा डॉक्टर लोग फैशन चॉइस बोल के पीपीई पहन रहे क्या? क्योंकि समझ रहा है तू मास्क पहनेगा तो ऑक्सीजन कैसा जाएगा अंदर, समझ रहा है तू? अपना लेयर ले. हाँ वही तो. अभी तू ऐसा ब्लैंकेट मुंह के ऊपर रख लिया तो तू मर जाएगा ब्रो. मर जाएगा तू, समझ नहीं रहा है, मर जाएगा तू. Why didn't we think of this before? Call back to suicide. But ये फ्लैट अर्थ वाला पब्लिक है रे. हाँ बस ये फ्लैट अर्थ है, बेसिकली फ्लैट अर्थ है ये लोग. वो आई थिंक वो अपन अमेरिका को बहुत स्टूपिड वगैरह बोलते हैं. The thing is what we are seeing with in India also now is this massive कि ऐसा मास लेवल पे लोग इंडोक्ट्रिनेट हो रहे हैं कोई एक चीज को लेके. It is either being thugs or being fans of some YouTuber. People ऐसा मॉब बनते जा रहा है ना धीरे धीरे. और मॉब में कैसा होता है कि if one thing spreads, the entire group believes it to be true. फ्लैट अर्थ का कोई एक बंदा जिसको YouTube पे व्यूज चाहिए था उसने डाल दिया, बट वो शेयर हो के नाउ इट्स अ प्रॉपर कल्ट. एंड उनको शेक नहीं कर सकता वो वैसे. एक और बात, in my opinion, another huge factor behind, another huge element behind, be it the Black Lives Matter protest or the America against mask protest, is that कि कैसा basically America, ये I think we have covered this, but let me just repeat this again. कि America is essentially a capitalist country. Maximum resources are privately owned.
और मतलब अपन जो गवर्नमेंट सेक्टर में, जो पब्लिक सेक्टर में जो अपन लग्जरीज देखते हैं एम्प्लॉयज के लिए कि जॉब सिक्योरिटी हो गया, मतलब पेड लीव्स और फेयर वेजेस और ये सब जो पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये सब जो मिलते हैं, ये जो फैसिलिटीज है, जो सिक्योरिटीज जो मिलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में वैसा नहीं. प्राइवेट सेक्टर इज अ वेरी मीन प्लेस. अगर तू काम करेगा तुझे पैसा मिलेगा उतना ही है. और बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक huge number of people have lost their jobs or are not getting paid. तो उनका घर कैसा चलेगा? So there is this frustration behind it. और मतलब it has to come out in some form or other. कुछ लोग घर पे बीवी को मारना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग बाहर आके सोशल कॉज के लिए फाइट करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग रास्ते पे आके बोलते हैं कि हमें मास्क ही नहीं पहनना है. और वो आई थिंक डेफिनेटली वो फैक्टर तो है कि हायर अनएम्प्लॉयमेंट डज रिजल्ट इन बहुत सारा सोशल मीडिया. तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ऑन ऑक्सफैम इंडियाज पेज 2 साल पहले आया था आई थिंक कि एवर सिंस द इंडियन इकोनॉमीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज राइजन, द नंबर ऑफ कम्युनल इंसिडेंट्स दैट इज मॉब लिंचिंग, रिलीजियस डिसहार्मनी, ये सब बहुत बढ़ गया एकदम से. बिकॉज अब तेरा जॉब चले गया है तो तू क्या बजरंग दल ज्वाइन करेगा, आरएसएस ज्वाइन करेगा, उधर तेरे को तलवार पकड़ा देंगे ऐसे पावर फील कराने के लिए. देन तू फिर जॉब नहीं है तो फिर ये मुस्लिम आदमी चलो मारते. Somewhere in one place or the other you blame the government or the society for your inability to take a job or like anything good happening in your life. तुम्हें कुछ blame करने के लिए चाहिए. It is वो if you see all these बहुत सारा जो कंजर्वेटिव पेजेस है इंस्टाग्राम पे, वो लोग का आर्ग्यूमेंट हमेशा 2-3 चीज पे चल जाता है. वन इज कि ये देखो मुस्लिम लोग इतना बच्चा कर रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन में बहुत बड़ा साइज, इसलिए हमारे जॉब दे रहे वो लोग. सेकेंड इज ये ऑपोजिशन की वजह से सब प्रॉब्लम है, ऑपोजिशन ने 60 साल इंडिया खराब किया, इसलिए मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे. अभी if your head is filled with this to the brim, तो दिन भर सिर्फ यही दिख रहा है तेरे फील्ड में, तो देखो भी लगा नहीं मुस्लिम लोग प्रॉब्लम शुरू कर देगा, मुस्लिम लोग प्रॉब्लम है तो तू भी सोचने लगेगा. बराबर. इट इज बाय एक्सीडेंट दैट मतलब अपन भी बाय एक्सीडेंट इंस्टाग्राम पे आके अपन समझो कभी सिर्फ आरबीसीजे को फॉलो करते, तो देयर इज लिटिल चांस दैट ये अपन भी कभी ऐसा गैंग ह्यूमर डेवलप करते. यू आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट यू वॉच, व्हाट यू कंज्यूम. दिन भर कोई डेथ मेटल सुनते रहा, उसको भी रात को सुसाइड का मन तो होगा. रेफरिंग टू नो वन इन दिस पॉडकास्ट एट ऑल. वाओ, कुड यू बी मोर मिस्टीरियस? बिल्कुल नो, मतलब ऑडियंस जानता है कि तेरा आवाज. हाँ ठीक है ना, पर अभी मैं क्या ओके मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा. यू हैव इंसल्टेड मी एट माय ओन पॉडकास्ट विच इज ओके, क्योंकि अभी मैं बहुत जिसको जो करना है जब तक इलीगल नहीं करो बहुत झाड़ा हो, इसलिए मैं कमेंट पास होने दूंगा और मैं इसको एडिट नहीं करूंगा. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. नहीं यार, बीटीएस मेरे को भी नहीं करना क्योंकि मेरे को पता नहीं एक्चुअली क्या है सीन पूरा. अरे कुछ नहीं है बेसिकली. क्या कुछ बीटीएस भी नहीं, के पॉप अभी कुछ सालों इन द पास्ट डेकेड अ न्यू जॉनर हैज कम आउट व्हिच इज के पॉप. और उसमें बेसिकली वो जो लोग हैं जो अपन हाउ वी ट्रेडिशनली बिलीव ट्रांसजेंडर पीपल should look, वो वैसे दिखते हैं इवन दो दे आर स्ट्रेट और whatever, even if they are not. मतलब उनको एक एज अ डेरोगेटरी टर्म उन्हें बोला जाता है. वो तो सबने देखा है ना कि दिस इज हैंडसम विद सम जेनेरिक डाउन राइज फेस एंड नीचे उनका फेस है कि आई डोंट नो व्हाट दिस इज. तो जो लेंथ ऑफ माय नॉलेज जेनेरिक जो ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ मेल हाउ अ मैन शुड लुक है वो उसके अगेंस्ट है. तो उसके लिए उनको ट्रोल किया जाता है कि नहीं तुम तो आदमी हो ही नहीं. और a huge reason behind this is कि tons of girls are like literally मैं यही बोल रहा हूं devoting their lives to them.
तो कहीं ना कहीं तो जलती है भाई लॉन्डो की जल बेसिकली वही है comes down everything comes down to clout यार guys be looking like Kim Jong Un and saying these are not good हाँ तो उसके अगेंस्ट कुछ ज्यादा ही और स्पेशली अपने कंट्री में बहुत बहुत ज्यादा हेट है बहुत हेट है वो टिकटॉक बट इंटरनेशनल हेट है बेसिकली हाँ तो और उनके पास अच्छे आर्गुमेंट भी नहीं उनका ये भी कहना नहीं मतलब बेसिकली के पॉप क्या है म्यूजिक जॉनर है तो उनका कंप्लेंट ये है कि लोग अच्छा नहीं दिखता है ये ट्रांसजेंडर है म्यूजिक से कुछ एक गाना नहीं सुना गाली देना ये आइटम सॉन्ग सुनने वाला पब्लिक है हाँ वीडियो इनको गाने से मतलब नहीं इनको वीडियो में सनी लियोनी दिखा कि अच्छा गाना है बोल देते हैं बात एक तो वो नहीं तो इनको सलमान भाई का बेल्ट हिलाते हुए नहीं दिखा हाँ फुल मसल के साथ तो मजा नहीं आता बस उनके लिए कुछ नहीं कर सकते उनको हाँ तो बॉटम लाइन ऑल्सो द बॉटम लाइन कम्स टू कि जोक है ट्रीट दिस एज अ जोक डोंट टेक इट टू फार एक तो उनका फैन बेस जो है उनके फैंस है वो भी बहुत चूते है वो कुछ बहुत स्नोफ्लेक थे कोई भी एम आई कसिंग टू मच नहीं हाँ तो वो बहुत ट्रिगरेबल फैंस और बहुत इंटेंस हेटर्स दोनों ही कुछ शांति है ये तो मतलब समझ जाए तो भक्त है ये लोग हाँ बेसिकली भक्त है बट ये लोग गलत पॉलिटिकल न्यूज भी नहीं पढ़ते हाँ तो बस वही है तो इतना कुछ है नहीं मतलब हेट यार तुम ऑल आई एम ट्राइंग टू से आज के इससे हमें यही सीख मिलती है कि प्लीज इतना हेट मत दे रहे हो तो एज अ जोक इट कम्प्लीटली फाइन इट्स ऑल राइट टू जोक अबाउट समथिंग बट वो जेन्युइन हेट ऑलरेडी बहुत एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में और पास आउट जनरल मोटिव इज बी अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग एंड लेट एवरीवन डू व्हाट दे वांट टू एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हैम्पर योर एबिलिटी टू डू व्हाटएवर यू वांट कोई भी डिस्कशन का मुझे लगता है ये स्टेबल कंक्लूजन होना चाहिए तुझे जो करना है वो बेसिक आइडिया आई थिंक वो इफ एनीवन वांट्स टू गेट इनटू दिस लिबर्टेरियनिज्म गूगल करो नॉट लिबरलिज्म लिबर्टेरियनिज्म ये उसका मतलब इट्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी व्हिच जेन्युइनली ट्राइज टू बी एवरीथिंग प्रो चॉइस कि जिसका चॉइस है उसको मैं रिस्पेक्ट करेगा हाँ बट डोंट हर्ट एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हर्टिंग एनीवन हर्टफुल ठीक है इसके बहुत वेरिंग डिग्री ऑफ आर्गुमेंट्स है सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट नाउ सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे मैं बोला लिबर्टेरियनिज्म गूगल करो किसी को बहुत सोचने का इसको तो हाँ उससे मिल जाए I think we should take a halt here. Thank you guys for listening. Share it. This is going to be out on all major streaming platforms apparently. You have been listening to me, Nilay, and Vedan. Hello. Thank you for listening to Morphine and Unicorn. जब next segment करेंगे, I'll put out another story. Text me if you think we should do more such segments. Thank you for wasting approximately 40 minutes of your life on two guys rambling on the internet. That's all for today. Thank you and good night.